everyone and welcome to the next video of probability, which has HOTS question, and it'll tell you which method to apply in which question. Alright, let's begin with the first question. In the first question it says if A and B throws a pair of dice turn by turn. The first one to throw a 9 is awarded a prize. So let's talk about probability of winning. It says that जिसको 9 आया है, that will he wins the game. He's awarded a prize. So let's talk about 9 in a throw of dice. So some 9 आना means what are the different sample points? 3, 6, 6, 3, right? That makes 9. Then 5, 4 and 4, 5. That makes 9. That's it. Other than this, there is no combination which will make 9. So that means probability of winning, those who will win the prize. Can I say it is 1, 2, 3, 4? 4 by total we already know 36, right? क्योंकि pair of dice है. Pair of dice means 2 dashes. और first place के लिए 6 outcomes, अगली place के लिए भी 6 outcomes. So 6 6 are 36. So that is 4 by 36. Can I just simplify and write it as 1 by 9? And probability of not winning the prize is, can I say 1 minus 1 by 9? क्योंकि दोनों complementary events है तो 8 by 9. Let's move ahead. If A starts the game, A जो है वो game को start करता है. Find the probability of A getting the prize. Now, what is the possible outcomes? Let's find out. हो सकता है कि A is very very lucky and A wins right at the first go, at the first chance. Okay, then we are just calculating probability of A winning. A नहीं जीता, B को तो हमें वैसे भी नहीं जीतने देना क्योंकि हम probability of A's winning निकाल रहे हैं, और फिर दोबारा A जीत गया, यानी कि फर्स्ट के बाद हो सकता है A थर्ड अटेम्प्ट पे जीते, या ये भी हो सकता है कि A भी नहीं जीता, अगेन B भी नहीं जीता, A फिर नहीं जीता, थर्ड अटेम्प्ट पे नहीं जीता, फिर B भी नहीं जीता, एंड फिर दोबारा से A जीत गया है, यानी कि अब A फिफ्थ अटेम्प्ट पे जीतेगा, एंड सो ऑन. सो आई होप ये ऐसे करके समझो. सपोज आप और मैं गेम खेल रहे हैं. सो मेरी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मैं ही फर्स्ट डाइस थ्रो कर रही हूँ. सो हो सकता है आई एम वेरी वेरी लकी, आई विन एट द फर्स्ट गो, और जहां पे भी और आता है तो प्लस का साइन. अब मैं नहीं जीती, आप भी नहीं जीते, और फिर मैं जीत गई. सो आई विन एट द थर्ड टाइम. ओके, बिकॉज जब थर्ड बार थ्रो हुआ जो तब मेरी बारी आएगी, और फिर हो सकता है मैं फिफ्थ बार में जीतूं. अगेन ऑल्टरनेट करते हैं. पहली बार में मैं नहीं जीती, सेकेंड टाइम में आप भी नहीं जीते, फिर मैं नहीं जीती थर्ड टाइम में, फिर फोर्थ टाइम में आप नहीं जीते, फिफ्थ टाइम में मैं फिर जीत गई, और ऐसे करके हमारी सीरीज चलती रहेगी. यानी कि ये इनफाइनाइट है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वेदर आई विल बी एबल टू गेट 9 और नॉट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नाउ. सो कैन आई से इट विल बी 1 by 9 विनिंग की प्रोबेबिलिटी, फिर नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी 2 बार, 8 by 9 इंटू 2 इंटू फिर 1 by 9, प्लस 8 by 9 नॉट विनिंग 4 टाइम्स, और फिफ्थ टाइम विनिंग, एंड सो ऑन. सो चेक करिए, if you see this, I can take 1 by 9 common also, and even if you don't want to take 1 by 9 common, then also it is okay. So 8 by 9 का whole square plus 8 by 9 raised to power 4 plus dot 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 till infinity. So can I apply, this is, if you remember हमने GP पढ़ा था sequence and series में, sum to infinite terms of GP. Okay, so sum to infinite terms of GP is A upon 1 minus R, where R is the common ratio. So 1 by 9, A is 1 upon 1 minus R. R is the common ratio. Common ratio कैसे आता है? जैसे common difference subtract करके आता है, common ratio divide करके आता है. तो A2 divided by A1 will give you R. So this is how you can, obviously calculations तो आप कर ही लोगे. 1 by 9, ऊपर 9 का square चला गया, और नीचे
9 का square minus 8 का square, this and this gets cancelled, and obviously you can solve in the denominator, or you can also apply identity. Right children? So 9 में से 8 गया तो 1 ही होता है, और this 16 plus 1 17. So that is our answer. That is how we will do question number 1. Okay, this question will also change अगर इसका आंसर बदल जाएगा अगर मैंने ये लिख दिया कि हमें probability of A winning की ही निकालनी है, लेकिन B start करता है गेम. So अगर B start करता है गेम तो क्या चेंज होगा? देखो, B नहीं जीता, A सेकेंड बार में जीतेगा, राइट? नाउ सेकेंड टाइम विन, उसके बाद अगेन B नहीं जीता, A फिर नहीं जीता, B फिर नहीं जीता, एंड फिर दोबारा से A जीत गया, राइट? सो विन. सो 1 2 3 4, अब A सेकेंड, फोर्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे ऐसे करके सीरीज बनेगी. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी वेज. सपोज करिए, एक और ट्विस्ट बताती हूँ. सपोज करिए ये A की विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा है, द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. A starts the game, find the probability of A getting the prize and B getting the prize. So A का ये आ गया और B का प्राइज गेटिंग क्या आएगा? 1 minus A, राइट? सो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो अगेन पूरा सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई शॉर्टकट. दैट इज योर टाइम सेविंग मेथड्स. Let's talk about question number 2. The probability of A solving a problem is 1 by 3, B solving a problem is 2 by 7, and C solving a problem is 3 by 8. If all three of them try to solve problem simultaneously, यानी कि तीनों को मैंने टेस्ट दे दिया है, तीनों एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, find the probability that exactly one of them solves a problem. अब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ना सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 minus 1 by 3, यानी कि 2 by 3. अगेन ऐसे ही P of B नहीं सॉल्व कर पा रहा, 1 minus 2 by 7, यानी कि 5 by 7. दिस इज अगेन P of C बार भी ऐसे ही आएगा, 1 minus 3 by 8, यानी कि 5 by 8, राइट? अब उसने पूछा है exactly one of them solves the problem. तो क्या केसेस बनेंगे पहले वो देख लेते हैं. A ने सॉल्व करी पहला, B ने नहीं करी, C ने नहीं करी, क्योंकि exactly one निकालना है. फिर A ने भी नहीं करी, B ने करी, C ने नहीं करी, या A ने भी नहीं करी, B ने भी नहीं करी, C ने कर ली. तो यही 3 केसेस हो सकते हैं जिसमें exactly one of them solves a problem होगा. सो आपको निकालना आता ही है. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करो. P of A that is 1 by 3 into B naught, यानी कि 5 by 7 into 5 by 8, प्लस ऐसे ही A बार यानी कि 2 by 3, B यानी कि 2 by 7 into अगेन C बार that is 5 by 8, C ने नहीं करी, या थर्ड केस 2 by 3 into 5 by 7, A ने नहीं करी, B ने नहीं करी और C ने कर दी. So you can obviously calculate your answer. Don't cancel the denominator children, simplify मत करिएगा. Denominator को just a short this thing, denominator को same रहने दीजिएगा, just calculate the numerator and then you can simplify. So 5 5s are 25 plus 5 2s are 10, right? And 10 2s are 20 plus similarly 5 2s are 10, 10 into 3 is 30. अब जो भी आएगा 5 3 2 2 2 4 4 5 6 7, so 75. अब आप कैंसिल कर सकते हो and whatever you get is your answer. Okay, just to save on time. Let's talk about the third one. 3 critics review the book. Odds in the favor of book are 5:2. Let me tell you how to read. इसमें just concept है कि read कैसे करना है रेशियो को.
सो प्रोबेबिलिटी तीन लोग हैं, तो एक को ए, एक को बी, एक को सी ले लेते हैं. सो ए odd in the favor of book is 5:2, यानी कि रेशियो 5/7 ऐसे रीड करेंगे. सो दिस इज 4/, again 7. This is 3/4, यानी कि again the ratio is 3:4. So this is 3/4. And obviously नॉट वाला भी again आपको आता ही है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में लॉजिक सिखाया. 1 minus 5/7 यानी कि 2/7. ऐसे ही पी बी बार भी आता ही है. 1 minus 4/7, so that is 3/7. And p of c bar भी आता ही है, that is 7 में से 1 minus 3/7, that is 4/7. All right children, so अब आप आगे कर ही सकते हो. क्या है क्वेश्चन पूछा है, उस आगे देखते हैं. Find the probability that the majority are in the favor of book. Majority are in favor. So majority are in favor का मतलब क्या हुआ? ए फेवर में है, बी फेवर में है, सी फेवर में नहीं है, या ए और सी फेवर में है, बी फेवर में नहीं है, या बी और सी फेवर में है लेकिन ए फेवर में नहीं है. या ऐसा भी हो सकता है, ये केस बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ऑल थ्री आर इन द फेवर. राइट, सो अगेन सेम लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही लगेगा. P of A इंटू P of B इंटू P of C bar plus P of A इंटू P of C इंटू P of B bar and so on. Right? So you can obviously calculate, everything is given to you. That is question number 3 for you. Let's talk about question number 4. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls. Another bag 2 contains 4 red and 5 black balls. 2 balls are transferred from bag 1 to bag 2. So bag 1 से bag 2 से 2 बॉल ट्रांसफर हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल केस बना लेते हैं. केस 1, E1, both are red. Case 2, both are black. या केस 3, ये भी तो हो सकता है चिल्ड्रन. 1 is red and other is black. Okay, these are the 3 cases. Then okay, 2 balls are transferred at random from bag 1 to bag 2. Then a ball is drawn from bag 2. एक और इवेंट है. Another ball is drawn from bag 2. It is found to be red. Is red. Okay. Find the probability that the transferred balls were black. जो बॉल है वो रेड आई है और क्वेश्चन कहता है कि ये निकालो कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है, दोनों ट्रांसफर्ड बॉल वो ब्लैक है. सो दिस इज व्हाट इज योर क्वेश्चन. तो इसी से क्लियर हो जाना चाहिए कि बेस थ्योरम लगेगा चिल्ड्रन. So it says P of E2 by A will be P of E2 into P of A by E2 अपॉन डिनोमिनेटर में आपको समेशन याद ही है. P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of
A by E3. Let's calculate. क्या क्या हमें डालना है. P of E1, दो बॉल्स जो हैं वो रेड आई हैं. सो रेड, पहली बॉल रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है चिल्ड्रन? आई होप आपको पता है. 3/7. चेक करो. 3 बॉल्स रेड हैं, टोटल 7 बॉल्स हैं. 3/7 और दूसरी बॉल भी रेड आना 2/6. P of E2, ब्लैक, दोनों ब्लैक आना फर्स्ट बैग में से. सो 4/7 इंटू 3/6, राइट? P of E3, one red, one black. So 3/7 into 4/6 into 2 आएगा. Please remember into 2 क्यों आएगा? This is where the mistake happens. क्योंकि बॉल रेड ब्लैक भी आ सकती है या ब्लैक रेड भी आ सकती है, राइट? सो दिस इज E1, E2, E3. अब what is P of A by E1? मतलब जो अगर रेड बॉल ट्रांसफर हुई हैं तो जो बैग 2 है अब उसमें बॉल्स कितनी हो गई? लेट्स कैलकुलेट. कैन आई से बैग 2 के अंदर जो बॉल्स हैं, 2 रेड ट्रांसफर हुई, 4, 5, 6 रेड एंड 5 ब्लैक हो गई, राइट? इस केस में 4 रेड रही लेकिन ब्लैक 7 हो गई. इस केस में 5 रेड and 6 black हो गई, right? Now the question says a ball is drawn and is found to be red. तो red ball आना, इस केस red ball is 6/11 children. Similarly P of A by E2, red ball आना जब पहली balls black हैं. तो अब इसमें से यानी कि 4/11 and P of A by E3. Again red ball आना 5/11. So now everything is given to you. Do not simplify anything, okay? LCM यही रखिएगा so that calculation जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम आएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. So that is the way I told you in the previous question. So, okay, so denominator just, okay, let me show you if you want to see. Let me just show you one step of calculation. After that you can do on your own. If I want to put it, this is E2, that is 4 into 3, 7 into 6, into A by E2, that is 4/11, upon, check karo, P of E1, 3/7 into 2/7 into 6/11, sorry, 2/6, I'm sorry, plus this is 4 into 3, 7 into 6 into 4/11, plus E3. E3 is 3/7 into 4 into 2 into 6 into 5/11. चेक करो, सबके डिनोमिनेटर सेम है. सो 4 4s यहाँ पे 4 into 4, लेट्स नॉट कैलकुलेट, अपॉन चेक करिए, ये डिनोमिनेटर पूरे एलसीएम जब लोगे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ 3 into 2 into 6 प्लस 4 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 2 into 5, ये बचेगा. अब पहले ये कैलकुलेशन करके ऐड अप करिए, और इवन इफ यू वांट यू कैन टेक कॉमन. चेक, वी कैन टेक कॉमन, 4 कैन बी टेकन कॉमन, 3 कैन बी टेकन कॉमन, और वो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा. And then you can solve it, right, to get your final answer. That is question number 4 for you. Question number 5 में क्या logic लगाना है? Let's check. Question number 5 says the reliability of a COVID PCR test is specified as follows. Of people having COVID, 90% of the test detects the disease, but 10% go undetected.
of people free of COVID. So there are two kinds of people. E1, person has COVID. E2, free of COVID or do not have COVID, right? Of free of COVID, 99% of the test is judged COVID negative, but 1% are diagnosed showing COVID positive. On the basis of information and answer from a large population in which there are only 0.1% who has COVID, तो क्लियर हो जाना चाहिए P of E1 कितने परसेंटेज को कोविड है, सिर्फ 0.1%. तो अगर इसे उसमें कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा, राइट. एंड कोविड कितनों को नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, तो 100% माइनस 0.1%, यानी कि 99.9%. अगेन कन्वर्ट करोगे तो 99.9 अपॉन 100 आ जाएगा ये भी, राइट. आगे पढ़ते हैं. One person is selected at random and given the test COVID PCR, given the COVID PCR test. एक person को randomly select करते हैं. Find the probability that the person diagnosed as COVID positive. मतलब जो person है वो COVID positive है, जो टेस्ट है उसका वो पॉजिटिव आया है. सो कोविड पॉजिटिव टेस्ट यानी कि हमें P ऑफ A निकालना है. तो ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ ये निकालना है कि जो पर्सन है दैट इज कोविड पॉजिटिव पर्सन, टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर दैट पर्सन. तो ये जो है दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. That is, can I say P of A is P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. अब E1 E2 तो पता है लेकिन ये नहीं पता, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रीडिंग वापस करनी पड़ेगी. A by E1 यानी कि the person is tested COVID positive given that the person has COVID. So ऑफ पीपल हैविंग कोविड यानी कि ये हमें यहाँ से मिलेगा. 90% टेस्ट डिटेक्ट्स द डिजीज. सो 90% यानी कि 90/100. ओके, जो टेस्ट पॉजिटिव आता है जिनको कोविड है, और टेस्ट पॉजिटिव आना जिन्हें कोविड नहीं है. Of the person free of COVID, 99% test is judged COVID negative, but 1% are diagnosed 1%, यानी कि 1/100. Now everything is given to you. Now you can calculate. So again, don't bother about the calculation. दिखने में ऐसा लगता है कि बड़ी है. इसको थोड़ा सा पॉइंट अगर मैं हटा लूँ तो 1/1000 आ जाएगा, और इसमें भी अगर मैं पॉइंट हटा लूँ तो ये 999/1000 आ जाएगा. So check करिए, this is 1/1000 into 9/100, sorry 90/100 plus again 999/1000 into 1/100. So check करो, denominator again same है, 1 2 3 4 5 zeros, 90 plus 999. That is, please add 9 1, so 3 4 5, so this is 1 2 3 4, so 0.01089. that is your percentage, right? No, that's your 0.00. This is your answer. Okay, now let's do the second part. इसका second part क्या कहता है और उसमें हमें क्या निकालना है. The second part of the question says if the pathology reports him as COVID positive, यानी कि वो COVID positive तो आ जाता है, what is the probability that a person has COVID given that his test is positive? Person has COVID, right?
तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, E1 बाय ए। तो यानी जैसे E1 बाय ए आ गया, ऑब्वियसली समझ आ जाना चाहिए बेस थ्योरम लगेगा। अगेन बेस थ्योरम की आपको पता ही है, P ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाय E1 अपॉन समेशन टोटल, यानी कि क्या मैं लिख सकती हूँ P ऑफ ए, क्योंकि समेशन तो P ऑफ ए ही था ना दोनों इवेंट्स का। तो P ऑफ E1 अगेन हमें पता है 1/1000 इंटू दिस इज A by E1 that is 90/1000 अपॉन ये कितना आया था 1089 अपॉन 1 2 3 4 5। अगेन डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 90/1089, जिसको आप ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा डिजिट्स गिवन है, सो डोंट वरी, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू विल कम टू नो कि क्या चीजें एक्स्ट्रा है क्वेश्चन में। All right, question number 6, children. A box contains 3 red and 5 blue balls. 2 balls are drawn at a time at random without replacement. ये याद रखना है word. Without replacement. और हमने सिर्फ 2 balls निकाली हैं. 2 balls are drawn. Find the probability of getting red and blue. Okay, red and blue ball. तो क्या क्या केसेस हैं? हो सकता है पहले रेड फिर ब्लू आई हो, या प्लीज रिमेंबर दीज केसेस, पहले ब्लू फिर रेड आई हो। सो पहले रेड आना, रेड 3/8 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने रेड जो बॉल निकाली है वो बाहर रख ली है, तो अब टोटल बॉल 7 रह गई है, तो ब्लू बॉल आना 5/7। ऑब्वियसली ये भी सेम, ब्लू बॉल आना 5/8 पहली, और दूसरी रेड बॉल आना यानी कि 3/7। यहाँ मैं शॉर्टकट में मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ 3/8 इंटू 5/7 इंटू 2, क्योंकि डिजिट्स तो सेम ही है, राइट। सो दिस विल बी माई आंसर। सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हो। इसमें गलती होने के क्या चांसेस हैं? चिल्ड्रन फॉरगेट दिस। वो बोलते हैं रेड और ब्लू पूछा है, उसने ये नहीं बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पहली रेड और दूसरी ब्लू आनी चाहिए, कि आप एक ही केस लोगे, राइट। ऑर्डर विल मैटर। That is question number 6 for you. Let's talk about question number 7. Consider an experiment of tossing a coin. If it shows a head, एक coin toss हो रहा है, head and tail आएगा, right? If it shows a head, toss it again. अगर head आया, फिर दोबारा से उसे toss कर दो coin को, तो head tail और head head ये आएगा, क्योंकि पहला head आ चुका है। और अगर tail आया, If it shows a tail, then toss a dice. तो dice के साथ tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6, right? तो सबसे पहले यहीं से समझ जाना चाहिए, जैसे ही वो आया इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, यानी कि ये ट्री डायग्राम बना है, तो इसकी कॉइन पे हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 थी, और 1/2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, राइट। सो आंसर क्या आएगा? 1/2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो ईच पॉइंट विल हैव दिस प्रोबेबिलिटी 1/4। सिमिलरली हियर ये 1/2 था टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और ये जो 1/2 है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो 1/2 इंटू 6 यानी कि 1/12। ईच सैम्पल पॉइंट हैज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/12। अब निकालना क्या है, चेक करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसको ले लेते हैं ई। द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ई गिवन दैट एफ, गिवन दैट देर इज ओनली 1 टेल, इसे एफ ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमें आंसर पता ही है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। आई होप चिल्ड्रन इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें ये जो फॉर्मूला है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ नहीं लगेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, राइट, दैट इज वाई। नाउ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 भी आना है, एंड देर शुड बी एटलीस्ट 1 टेल, नंबर ग्रेटर देन 4 एंड एटलीस्ट 1 टेल, सो यानी कि 2। सो 1/12 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स।
this plus this, right? Upon there is at least one tail. At least one tail means कितनी बार? एक, दो, इन सब में एक एक टेल है. 1 2 3 4 5 6. सो 1/12 6 टाइम्स प्लस इसमें भी तो एटलीस्ट वन टेल है, यानी कि 1/4. राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. एलसीएम 12 ही रखिएगा सो दैट ऊपर वाला कैंसिल हो जाए. 6 4 3 12 होता है, यहाँ 3 आ गया, ये 12 12 कैंसिल हो गया, यानी कि 2/6 plus 3 2/9 is your answer, children. That is question number 7 for you. It's a very very important hot question. Again question number 8. ये अब आसान है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट. इसमें बच्चों को बस ये डबलेट नहीं पता होता, तो डबलेट ध्यान रखना है. जब आप पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हो तो सेम नंबर आने को डबलेट कहते हैं. 1 1 2 2 3 3 so on till 6 6. So probability of getting a doublet is again 6 by total events कितने होते हैं? 36. सिंप्लीफाई करूं तो 1/6. डबलेट ना आना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 minus 1/6 यानी कि 5/6. अब क्वेश्चन देखिए क्या है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 throws ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. तो 3 बार हमने पेयर ऑफ डाइस फेंका है, तो हो सकता है एक भी बार डबलेट ना आया हो सकता है एक बार डबलेट आया हो सकता है 2 बार डबलेट आया हो सकता है 3 बार डबलेट आया हो. एक भी डबलेट ना आना यानी कि तीनों बार हार गए, तीनों बार डबलेट नहीं आया, यानी कि 5/6 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. फिर सिंगल टाइम डबलेट आना. अगेन चिल्ड्रन हियर ऑर्डर विल मैटर. मतलब एक बार डबलेट आया और 2 बार डबलेट नहीं आया, राइट? कितने केसेस बनेंगे? 3. कैसे? इसको एक्सप्लेन कर रही हूं. पहली बार डबलेट आया, दूसरी और तीसरी बार नहीं आया, या पहली बार डबलेट नहीं आया, दूसरी बार डबलेट आया, तीसरी बार डबलेट नहीं आया, या पहली बार डबलेट नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया और तीसरी बार आया, राइट? सो इसके 3 केसेस. सिमिलरली 2 बार डबलेट आना और एक बार नहीं आना, यानी कि 1/6 raised to power 2 into 5/6. अगेन कितने केसेस? 3 केसेस. सेम वे, राइट? और तीनों के तीनों टाइम डबलेट आना. P of D. Doublet means 1/6 raised to power 3. That is the probability distribution. That is question number 8 for you. 9 करते हैं. 3 coins और टॉस साइमल्टेनियसली. 3 coins और टॉस, तो ऑब्वियसली हमें सैम्पल स्पेस पता ही है. कितने बनेंगे सैम्पल पॉइंट्स? 2 into 2 into 2, यानी कि 8 सैम्पल पॉइंट्स होने चाहिए. आगे आगे करते हैं क्या है. उन्होंने बोला कि देर आर 3 इवेंट्स. ई क्या बोला है? 3 हेड 3 टेल. 3 हेड और 3 टेल. एफ एटलीस्ट 2 टेल. यहां कंफ्यूजन मत करना. एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम. मिनिमम 2 टेल्स. मिनिमम 2 टेल्स मीन्स 2 टेल्स तो आनी ही चाहिए, तो ऑर्डर मैटर करेगा. और 3 टेल्स भी हो सकती है. एटलीस्ट, सॉरी टेल्स नहीं बोला है, हेड बोला है. आई एम सॉरी, लेट्स राइट डाउन अगेन. एटलीस्ट 2 हेड्स. सो 2 हेड तो आने ही आने हैं. मिनिमम 2 हेड्स. अगेन ऑर्डर हेड हेड टेल, एंड 3 हेड्स भी आ सकते हैं. That is the meaning of minimum 2 heads. Now let's go up further. At most 2 heads. At most का meaning क्या होता है? मैक्सिमम. मैक्सिमम 2 हेड मतलब 2 हेड राइट. एक हेड भी हो सकता है क्योंकि उसने मैक्सिमम बोला है. और
जीरो हेड भी हो सकते हैं. सो ये ध्यान रखना है, एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस. अब उसने पूछा है चेक वेदर ई एफ, एफ जी या ई जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. लेट्स मैं आपको एक करके दिखाती हूँ. पहले आपको पी ऑफ ई दिख ही रहा है जो कि 2/8 है, राइट. पी ऑफ एफ भी आपको दिख ही रहा है जो कि 4/8 है. जरा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो कॉमन चेक कर लीजिए, सिर्फ एक ही है यानी कि 1/8. तो चेक करो क्या 2/8 इंटू 4/8 करके इक्वल आएगा 1/8 के. चेक कर लेते हैं. 2 4 4 1 यस, इट इज 1/8. यानी कि हम लिख सकते हैं पीई इंटू पी एफ is equal to P of E intersection F. So yes, E and F are independent. अब आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, एफ जी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, एंड एफ जी इंडिपेंडेंट है, ई जी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, एफ जी इंडिपेंडेंट है कि नहीं. तो एक अगर आप चाहो तो मैं ई जी करके दिखा देती हूँ. पी ऑफ जी कितना आएगा वो तो दिख ही रहा है 7/8, राइट. और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकालते हैं, ई और जी का इंटरसेक्शन जो कि अगेन सिर्फ 1 ही दिख रहा है, 1/8. तो क्या पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ जी, ई कितना है 2/8 इंटू जी कितना है 7/8. सो 2 1 2 4. क्या 1/8 इक्वल है 7/8 इंटू 4 के? नो. So no, this is not continuous. Similarly, you can try for FG yourself and check. Let's talk about the last question, children. 3 cards are drawn successively from a pack of 52 cards. What is the probability that first 2 cards are king and third is an ace? Okay. 3 cards successively draw हुए हैं, right? तो पहला कार्ड किंग आना, कितने किंग्स होते हैं 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52. अब मैंने आपको बताया था जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो ऑब्वियसली हमें विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है. तो नेक्स्ट किंग आना 3/51, उसका अगला एस आना, एस तो 4 ही है, 4/50, राइट. सो दिस इज द probability. Now, will the probability change if the cards are replaced after each withdrawal? अब उसने बोला कार्ड्स को मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी कि पहला मैंने किंग निकाला जिसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 दी और मैंने देख के उसे वापस डाल दिया, रिप्लेस कर दिया, तो अगला किंग भी 4/52 आएगा. और एस कितने होते हैं वो भी 4 ही होते हैं. टोटल कार्ड 52 है क्योंकि ये किंग मैंने जब देखा फिर मैंने वापस रख दिया. सो यस, you can see, are these two equal? No. So will the probability change? So yes, the probability will change because this is the case without replacement and this is the case of with replacement. So this is all about your probability from NCERT. If you still have any doubts regarding any calculations or a method, please leave in the comments below.